is a Meet Your Candidate organized by AGNI. AGNI stands for Action for Good Governance and Networking in India. And we have been organizing election watch campaign starting from voter awareness, ensuring that the citizens enroll themselves, and on the election day they go out and vote. So the first message which I would like to give you here is that you must go out on 20th May and go out and cast your vote. It's your fundamental duty. As part of this process of election awareness campaign, we also have Meet Your Candidates, wherein we invite candidates from major political parties to come and interact with the citizens. Today we are fortunate to have Congress candidate Varsha Gaikwad ji. Unfortunately, we had also invited Ujjwal Nikam from BJP, but he is not able to attend for I don't know what reasons, though sufficient notice was given. We also have, just as political parties have their own manifesto, we have our Citizens Charter or Citizens Manifesto being circulated, and wherein we request the candidates that these are our citizens' demands, which you will acknowledge and try, if you are elected, you try to push for those whatever demands are there from the citizens. At the end of that, we also take a undertaking or a sort of a pledge from the candidate that I will try to fulfill the demands of the citizens. And also, one important point, there is an MP fund which is available for each constituency annually. We request the candidates and after they get elected, the members of parliament to use those funds diligently in their own constituency and consult the citizens before they spend that money. So these are the demands. When I would be presenting the Citizens Charter to her, and I would request her to accept that. And there are lots of issues which you have mentioned. I don't want to go into that, but there are certain 2 or 3 major points, because this is of parliamentary elections. This is not a local corporation election or a MLA election which is for the state. So the issues which we will be having should be based for the welfare of the entire city or for the state or for the country. We can't have local civic issues being raised. And hence I would request you to kindly not take up issues, civic issues like my stormwater drainage or my water problem, all those issues which are locally to be tackled, they are not to be taken in this meeting. There are 1 or 2 important issues which we have highlighted in this particular charter. One is about the housing. Housing, as you are aware, there is a large area of slums, and there is to be a comprehensive policy for slum redevelopment, which unfortunately has not been there for many years. As a result, there is slum proliferation, there are not adequate facilities or infrastructure available to the people who are staying in slums. And Varsha Gaikwad is hailing from that Dharavi as an MLA, and I would have that if she gets elected, she should work to ensure that those who are living in slums get a better, it's not just free housing, but there are better infrastructure. That's all. A few words about our candidate, Mrs. Varsha Eknath Gaikwad ji. She's a 4-time MLA in Dharavi, and she's a current candidate, obviously, for the Lok Sabha election here as for the India Alliance. Mrs. Gaikwad is the daughter of Mr. Eknath Gaikwad ji, a former member of Parliament and popular Congress leader. Mrs. Gaikwad came from a humble background and was brought up in a middle-class family. She studied in a government school and completed a master's in science in math. She's a professor of mathematics. She's been a professor of mathematics for 5 years, after which she decided to follow her late father's path to serve people in Dharavi. She's been a minister in the state cabinet, holding the women and child development portfolios.
as well as becoming the first woman education minister of Maharashtra, during which her tenure was successfully handled. During her tenure, she successfully handled school closures, reopenings, and pandemic-related issues. She has also ensured that her constituency of Dharavi, which is heavily populated, escaped the worst of the COVID, and the Dharavi model became recognized globally. Mrs. Gaikwad is currently the president of the Mumbai Regional Congress Committee, the first woman to hold the post, a strong advocate of the Constitution and a devoted Ambedkarite and devoted to the Ambedkarite principles of equality and justice. Mrs. Gaikwad believes in a transparent, people-centric model of governance. She believes that she will be able to replicate her brand of citizen-centric politics in Parliament too. Welcome, Mrs. Gaikwad. अग्नि को बहुत धन्यवाद। अग्नि ने वर्षा को बुलाया है, तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं जैसे हमारे इन्होंने मुझे आपको इंट्रोडक्शन दिया आपका मेरा, थोड़ा उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आई हूँ, मुंबई महानगर पालिका के स्कूल से पढ़ी हूँ। 5 साल मैंने जॉब किया है एज अ प्रोफेसर MULU कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज में एज अ लेक्चरर फॉर मैथमेटिक्स फॉर सीनियर कॉलेज। मैंने MSc मैथमेटिक्स में किया है, B.Ed किया है। आई वाज सपोज्ड टू डू माय PhD आल्सो। इन बिटवीन मैं पॉलिटिक्स में आ गया 2004 में, थोड़ा मेरा PhD पीछे रह गया, बट डेफिनेटली देयर इज सम टाइम मैं उसको पूरा करूँगी। आज मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे फादर जो थे वो पूरी तरह से उत्तर मध्य मुंबई में जिले में पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं। तब मेरे फादर जब लड़ रहे थे तो फाइट बहुत सबने कहा था कि मेरे फादर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बहुत जॉइंट लड़ाई थी। और मेरे फादर को कहा गया कि जॉइंट किलर बनके मेरे फादर आए। तब उसमें से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी कलीना और कुर्ला हमारे पास थी, और ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी तब अलग डिस्ट्रिक्ट में थी। लेकिन इस बार मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं 4 बार धारावी से चुन के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने 2009 से 2010 तक जो है वो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, टूरिज्म, उसमें साथ साथ मैंने स्पेशल असिस्टेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने हैंडल किए हैं। फिर 2010 में मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया गया और मैं वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की कैबिनेट मिनिस्टर बन गई। आफ्टर दैट मैं 2014 में भी जीत के आई, 19 में भी जीत के आई, और 19 में मुझे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है वो इंचार्ज बनाने का काम महाविकास आघाड़ी की सरकार में हुआ। मैंने बेस्ट पार्लियामेंट का भी पुरस्कार पाया है, मैंने बेस्ट स्पीकर का भी पुरस्कार हमारे विधानमंडल में पाया है, और UNDP के लिए भी मैंने काम किया है। क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, जब मैंने वुमेन्स पॉलिसी बनाई थी तो स्पेसिफिकली उसमें मैंने ट्रांसजेंडर के लिए वेलफेयर बोर्ड, मनोधैर्य योजना जो रेप और एसिड से विक्टिम होती है उस महिलाओं के लिए मैंने एक स्कीम बनाई थी, और UNDP ने उसके लिए मुझे फेलिसिटेट भी किया था, और UNDP ने मुझे थाईलैंड में उसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए भी बुलाया था। मेरा सौभाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अच्छा भाषण करती थी तो विधिमंडल में मुझे अमेरिकन काउंसिलेट ने चुना था ओबामा का इलेक्शन देखने के लिए। भारत की तरफ से मैं एकमात्र महिला थी जो वहाँ पे इलेक्शन देखने गई थी। फिर ऑस्ट्रेलियन काउंसिलेट ने भी मुझे चुना था, क्योंकि उन्होंने भी मेरा स्पीच असेंबली में सुना था। मैं ये आपसे इसलिए कह रही हूँ कि मैं मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ, और मैं आपसे इसलिए भी ये चीज़ें कह रही हूँ कि मैं इसलिए चुन के आती हूँ कि मेरी प्रीवियस भी है वो ये है कि वर्षा गायकवाड़ एक्सेसिबल रहेगी, वर्षा गायकवाड़ अवेलेबल रहेगी। वर्षा गायकवाड़ जो आप लोग कहोगे उस पॉइंट के ऊपर आपको जो सोल्यूशन करना है। सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि वाटर लॉगिंग है, लोकल बॉडी के इश्यूज है, AMP का इलेक्शन है, पर मेरा ऐसा अनुभव है कि मुझे लोकल बॉडी के इशू भी सॉल्व करना कैसे मुझे मालूम है, मुझे स्टेट गवर्नमेंट के इशू भी कैसे सॉल्व करना मालूम है, और मुझे क्योंकि बीइंग अ लॉन्ग टाइम मैं पॉलिटिक्स में हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं स्टेट गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग में मैंने बहुत सारा पार्टिसिपेशन किया है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बनती है, वेदर इट्स रीडेवलपमेंट, वेदर इट्स बिल्डिंग का, जैसे मैं आज सुबह जाके, आज मैंने सुबह हीरानंदानी में मॉर्निंग वॉक किया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि लोगों को बिल्डिंग को पूरी तरह से GST का चार्ज किया गया है, जबकि प्राइवेट सोसाइटी को GST चार्ज होना ही नहीं चाहिए, और आज उनको लाखों पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने आज उनको कहा है कि वर्षा गायकवाड़ का एक और खूबी है
कि वर्षा गायकवाड़ लड़ना भी जानती है, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो रोड पे हो, या चाहे मोर्चे पे आंदोलन पे हो। मैं आप सबको ये यकीन दिला सकती हूँ कि मैं बिल्कुल काम करना चाहती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। और जिस तरह से मैंने कहा कि पिछला मेरा अनुभव रहा है, मैंने नॉर्थ सेंट्रल की अभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने जितना पढ़ाई की है, मैंने 2-3 इशू के ऊपर काम किया है। जैसे आपने मुझे रीडेवलपमेंट के लिए कहा कि वर्षा गायकवाड़ धारावी के लिए जोरदार है, बिल्कुल मैं भी चाहूंगी कि यहाँ की डेवलपमेंट करते हुए यहाँ के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके ऊपर मैं ध्यान दूं। जैसा मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बांद्रा वेस्ट की बात करूंगी, तो मैं खारदांडा में गई थी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पानी का सवाल था। भारत नगर में गई थी तो वहाँ पे स्लम डेवलपमेंट का इशू है, बड़े आदमी का नाम वहाँ पे ज्वाइंट हो गया है, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम वहाँ पे आया है, तो अच्छी बात है। और सबसे भाग्यशाली मैं इसलिए भी हूँ कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट मेरे सामने इस बार है, वर्षा गायकवाड़ के सामने। तो ठीक है, लड़की हूँ, मैं लड़ना जानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन मुद्दों पे भी लड़ रही हूँ, लोकल मुद्दों के साथ मैं नेशनल मुद्दों पे भी लड़ना चाहूंगी। जैसे आपको पता है कि चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो, इस मुद्दे के ऊपर भी मैं लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जीएसटी का जो परसेंटेज ऑफ से हमारे स्कूल एजुकेशन में मैंने देखा, चाहे किताब हो, पेन हो, इसके ऊपर आप 12% से लेके 18% तक जीएसटी लगा रहे। खाने का कोई भी सामान है उसके ऊपर आज 5% से लेके 14% तक का जीएसटी आप लगा रहे हो। लेकिन वही आप कोई चीज अगर महंगी है, जैसे सोना है या गाड़ी है, उसमें आप कम परसेंटेज ऑफ जीएसटी लगा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटी है, जो चीजें जरूरी है उनके ऊपर कम मुझे लगता है जीएसटी है उसको माफ कर देना चाहिए कुछ चीजों के ऊपर। तो वो मेरा एक स्टैंड है। दूसरा, आप अगर देखोगे तो इस देश में 2008 से लेकर 2014 तक आप देखोगे तो 5.4 जो था वो परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट 2023 तक है वो लगभग 8 से भी ज्यादा परसेंटेज हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही हूँ कि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं युवाओं के लिए, हमारे लिए, सब लोगों के लिए। तो मैं काफी हद तक ओपन डिस्कशन के लिए भी तैयार हूँ, आपके लिए एक्सेसिबल रहूंगी। जैसा आपने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि कोई भी डेवलपमेंट विदाउट कंसल्टेशन डेवलपमेंट नहीं होता। पार्टिसिपेशन ऑफ आपके वहाँ के लोग, उसके बगैर आप डेवलपमेंट करते हो तो कंप्लीट पूरा कभी नहीं होता। तो मैं भी जानती हूँ कि इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट का इंक्लूसिवनेस, लोकल वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका इंक्लूसिवनेस, एंड बीइंग अ पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव मेरा इंक्लूसिवनेस। जब तक ये लोग साथ में नहीं आएंगे, वेदर इज फंड, वेदर इज एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, जैसा अगर सपोज मुझे पोल्यूशन पे काम करना है, जैसा मुझे ट्रैफिक पे काम करना है, तो मुझे मालूम है कि मुझे आप लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, यहाँ की लोकल अथॉरिटी के साथ बैठना पड़ेगा, और जितने भी अधिकारी उनके साथ बैठ के पॉलिसी में क्या बदलाव करना चाहिए इसके ऊपर मुझे काम करना होगा। तो आपने एक सजेशन दिया कि जब आप फंड की बात करो या कोई डेवलपमेंट की बात करो, तो डेफिनेटली मैं इस बात से मैंने चांदीवली में भी ऐसा किया है, बांद्रा वेस्ट में मैंने और एक ऐसा कन्वर्जन किया है जिसमें मैंने ये कहा है कि जब भी फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मुझे भी लगता है कि लोकल इशू, अभी जितने जहां मैं गई हूँ बड़े सोसाइटीज में, सब ने मुझे कहा है कि हमें फंड में गार्डन डेवलप करके दे दीजिए, और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। क्योंकि राइट नाउ जो पोल्यूशन का हमारा रेट है, मैंने कल भी एक मीटिंग में कहा जब हम खार में मिले थे, मैंने कहा कि 70% जो हमारा पोल्यूशन है वो बिल्कुल ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वेदर इट्स अ मेट्रो, मोनो, वेदर इट्स अ डेवलपमेंट, वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, इससे जो सब नीरी और आईआईटीबी का जो रिपोर्ट है, वो धूल के कण की वजह से जो है वो पूरा पोल्यूशन यहाँ पे अपना फैल रहा है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू है। और मुंबई जैसे सिटी में तो सबसे बड़ा, आपको मालूम होगा कि एक समय ऐसा भी था कि मुंबई 2nd नंबर पे था वर्ल्ड में रिगार्डिंग पोल्यूशन आफ्टर लाहौर। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत कंसर्न का विषय है। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वही कंजेशन भी हो रहा है। हम देख रहे हैं मेट्रो का काम हो रहा है, अलग अलग चीजों का काम हो रहा है, लेकिन बॉटल नेक बनने का काम भी उसके साथ हो रहा है, और ट्रैफिक इशू एक अनदर इशू हो रहा है। बाकी मुझे लगता है मुझे जितने यहाँ के इशू पता है, जैसे मैंने एयर इंडिया कॉलोनी का इशू समझ के लिया है, वो तो मैं पहले से ही फाइट करती आ रही हूँ, बिकॉज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उनको बाहर निकालने का काम चल रहा है। क्योंकि पहले वो एयरपोर्ट जीबीके के पास था, नाउ तो आपको पता है कि अडानी के पास है, तो उनके पैसेजेस बंद कर दिए हैं, ग्रेजुएटी बंद कर दी है, पेंशन बंद कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के साथ अन्याय है, क्योंकि आपको खाली करके चाहिए, इसलिए आपने उनकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी, पानी काट दिया। अब सवाल यह है कि उसकी भी फाइट हमें लड़ने का काम नहीं करने वाला। फनल जोन का एक इशू है जो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है। 18 लाख पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द फनल जोन। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करके, मुझे लगता है अगर हम इतना सारा इंसेंटिव बड़े लोगों को दे सकते हैं
तो बिल्कुल जो इंसेंटिव मुंबई के नागरिक हैं जिनके सेकंड फ्लोर तक घर है और सीनियर सिटीजन मैक्सिमम वहां पे रहते हैं, जो चढ़ के जाते हैं, चढ़ नीचे उतर के भी आते हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा इशू है। आपने सबको नोटिस देके कहा है कि उनकी पूरी पानी की टंकियां तोड़ने को बात कही है, तो वो भी इशू मैं आने वाले दिनों में उठाऊंगी। फिर मुझे मालूम है कि यहाँ पे आपके लोकल इशू भी कुछ रहेंगे, शायद आपके कल मुझे किसी ने कहा कि जॉबर्स पार्क में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, ये भी मुझे कल किसी ने बहुत बड़ा इशू रेज किया। तो मेरा स्टैंड तो वही है कि ये सब चीजों के ऊपर आने वाले दिनों में मैं काम करूंगी। मैं काम करने का जानती हूँ, एक्सेसिबिलिटी मेरा सबसे बड़ा है, और सबसे मैं सबको वही कह रही हूँ कि ना मुझे आजू बाजू में कोई पीए है, ना मेरा कोई आजू बाजू में बॉडी गार्ड है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। आप मुझे ऑफिस में भी हो सकते हो, घर पे भी मैं सबसे मिलती हूँ, 24/7 में अवेलेबल होती मैं इसलिए आपसे सबसे कर, क्योंकि मैं मेरा जो सबसे बड़ा क्वालिटी है मैं यही चाहूंगी, क्योंकि सबके जैसे XYZ आपको किसी के सिक्योरिटी के थ्रू आना नहीं पड़ेगा। और मुझे इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छी चीज अगर कुछ लगती है, मैं हमेशा कह रही हूँ जब से मैं डिस्ट्रिक्ट में आई हूँ, कि यहाँ पे हमेशा महिलाओं को चुन के लाने का आपने काम किया, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। Being a woman, I know how difficult being a woman to be in the politics or any place. You know, you have to बहुत सारी चीजों के आपको पैरामीटर से जाना पड़ता है being a woman. मैं राजनीति में शुरू की थी तो मैं 24 एज की थी, जब मैं पहली बार चुन के आई तो मैं 26 एज की थी। तो मैं समझ सकती हूँ आज मैं जहाँ पे आई हूँ इतने एज के बाद, मैं समझ सकती हूँ कि डिफिकल्टी से महिलाएं आती है। और ये डिस्ट्रिक्ट ने ताई, यू मस्ट अप्रिशिएट दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट ने हमेशा महिलाओं का साथ दिया है, और मैं चाहूंगी कि इस बार भी आप एक महिला का साथ दें, महिला को मौका दे काम करने का। और मुझे बहुत से लोग जानते भी हैं, मुझे जानते भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मेरी काम की पद्धति भी मालूम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले और आपका सपोर्ट मुझे मिले, और भारी मतों से मुझे आप चुनने के लिए मदद करें। धन्यवाद। Harsha ji, thank you very much. We can tell that you are going to be a fighter and you're going to be fighting for us if you end up winning the election. We're going to have a few questions, Harsha ji. What we need to make is affordable infrastructure. If it is going to be priced far above what anybody else, everybody can use, it's no useful. GST, madam, you've already covered it. The taxes need to be rationalized, and GST is a very regressive tax, and you've already covered that. Vaccines, vacancies in police and educational institutions need to be filled urgently. This is a high priority, madam. Vacancies in police and educational institutions. Police, they are outnumbered and outmanned. Number 4, better coordination between agencies of the state. That is also a very high priority. NEP should be reviewed under new education policy. Okay. Funding for night schools has been reduced, so that needs to be reinstated. Elective representatives should not be permitted to change parties. But there needs to be legislation to make them seek election again. Hi, Dipali. You made a statement in the press for working on Bandra slum. So, ma'am, what is your plan and what will change for the slum dwellers and the Bandra citizens? Definitely, I have a lot of experience to work with slum. So, आप don't worry, मैडम, मैं जब आऊंगी, राइट नाउ तो मेरा 20 तारीख तक कैंपेन हो जाने दीजिए, 21 के बाद मैं इनके साथ बैठ जाऊंगी, डोंट वरी। मुझे मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, जैसे मुझे मालूम है कि 15 ईस्ट में क्या समस्या है, 15 वेस्ट में क्या है। ऐसा मैंने कुछ बहराम पाड़ा में आज मैं सुबह मॉर्निंग को भेजा क्या, मैंने देखा वहाँ पे सिविक्स फैसिलिटी भी नहीं है, सॉरी टू से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको डेवलप करने के लिए सिर्फ सीमेंट का जंगल बनाना जरूरी नहीं है, उसके साथ एक डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, जहाँ पे जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने उनका सुन रही थी मैं, एजुकेशनल हब, वहाँ के लोगों को रोजगार के लिए कैसे हम फैसिलिटी दें, ये सब चीजों का एक साथ मिलकर प्लानिंग होना चाहिए। आई थिंक कुछ इशू कुछ जगह पे अलग इश्यूज भी है, जैसे कुछ जगह पे केसेस चालू है, कुछ जगह पे कुछ बड़े लोगों पे उनके ऊपर नजर है, तो अकॉर्डिंग टू द स्लम उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आने वाले दिनों में उसके ऊपर काम करेंगे। मुझे लगता है मेरे 2 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है, काफी हद तक दे नो बांद्रा वेस्ट थरली,
So they'll support me and they'll guide me, Mr. Rajaji or Mr. Asif Bhai. How are you going to regulate commercial and residential areas? So we don't have a demarcation. We have a lot of commercialization happening in residential areas like pubs and hotels and restaurants. So the residents are suffering greatly because of that, because of noise and all kinds of parking issues relating to that, ma'am. So this is a local issue and it is leading to law and order as well. So we'd like to know, if you can be of any help on this. See, there is a policy regarding the commercial and residential thing. Commercial, you require the proof, पता है. Residential के लिए 14 में से एक proof चाहिए. Commercial के लिए आपको या तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए या तो आपको गुमास्ता लाइसेंस चाहिए. So whatever you are having, वो उसके हिसाब से हम commercial को करेंगे. अभी आप कह रही हैं कि commercial को residential के साथ रहना है कि नहीं रहना है? मैम एक्चुअली completely residential areas में restaurants आ जा रहे हैं. Right. तो कोई उनका we don't want that, but that is it is forced onto us actually, which is leading to a lot of issues for the residents. But legally if they are right, so उनका rights हम छीन नहीं सकते. So we need to think about that. कि हम उनको कैसे separate करें या किस तरह से उनको adjust करें. That we require a policy decision, right? Yeah. But at the end of the day, if, eligibility is the important criteria. For that, you need to see the proofs. Out of 14, 1 required for the residential and 2 requires for the commercial. That I know and support in that. कि किसको कैसे adjust कर सकते हैं, ये तो मतलब issue बैठ के solve होने वाले issue हैं. कोई issue ये नहीं. हे रात्रीचा नॉईज होतो ना मला नाही I got it की त्यांना काय म्हणायचे पण if वो इस एरिया में रहते हैं तो उनके राइट से आप उनको डिप्राय नहीं कर सकते. उसमें कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं या उनको आगे या उनको पीछे कर सकते हैं. तो बिल्कुल तो बिना पीपल रिप्रेजेंटेटिव मेरा काम है कि मैं हर आदमी के लिए खड़ा रहूं. That is my goal. 100%. Ma'am, the next question is regarding infrastructure in the area. Redevelopment का जो rate है, the number of buildings going into redevelopment versus infrastructure. We don't have roads, we don't have enough infrastructure to support the utilities are not going to support the kind of buildings that are coming up. Each 2 story is now becoming 20 stories. So what is the plan that the government has? How do you address that, and how do we make it a sustainable redevelopment? We all want redevelopment, but not in the sense that it will be a complete chaos, which is what we are facing right now. डेफिनेटली मैं आपका पहले क्वेश्चन को भी इसको साथ ज्वाइन करना चाहूंगी. वो आपने जो मुझे पहले पूछा था इससे पहले वाला डेवलपमेंट में सिर्फ जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सीमेंट का जंगल नहीं बनाना है. डेवलपमेंट में इट शुड बी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्लस्टर डेवलपमेंट और इसके जैसा. तो उसमें जैसे हमने किया है धारावी में हम पानी की लाइन न्यू डाल रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोग नए आएंगे. हम अभी देखते हैं कि एसआरए की बिल्डिंग बनती है रेजिडेंस के लिए, दूसरी बिल्डिंग बनती है कमर्शियल के लिए. हम लोग लोगों को ला रहे हैं लेकिन उतना ही यूटिलिटी रख रहे हैं. जैसे आपका ड्रेनेज लाइन है, जैसे आपका पानी का लाइन है, जैसे आपका रोड का साइज है, जैसे आपका फुटपाथ का साइज है, उतना ही है. आपका पार्किंग का फैसिलिटी भी उतना ही है, जो बिल्कुल प्लान नहीं है, ऐसा मेरा कहना है. अगर हम कोई सिटी को प्लान करते हैं तो उसमें एक एजुकेशन हब भी होना चाहिए, एक गार्डन भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं वही का वही पुलिस स्टेशन भी होना चाहिए, वही का वही अस्पताल भी होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए. एक जगह पे जब डेवलपमेंट होता है, मैंने बहुत सी जगह पे डेवलपमेंट देखा, डेवलपमेंट कर गए, रास्ता नहीं बढ़ा है, फुटपाथ नहीं बढ़ा है, तो लोग रास्ते में चल नहीं पा रहे. तो मेरा भी यही मानना है कि अगर डेवलपमेंट हो तो इंक्लूसिव हो, जिसको प्लान से करे और उसको एग्जीक्यूट करे, ताकि आने वाले जो लोग नए भी आएंगे तो उनके लिए प्रॉपर जो है वो फैसिलिटी वहां पे दे सके. तो इसमें आपने जो बोला उसमें कमर्शियल फैसिलिटी को भी कई अलग जगह हम कर सकते हैं, तो वैसा भी हम कर सकते हैं. इसमें आप सोच सकते हैं. Ma'am, एक linked question है about CRZ rules. All of a sudden after COVID, the CRZ rules have completely been relaxed, which is also affecting our mangroves. It is affecting a lot of our environment as well. So how come this? It was relaxed to this extent. Now even on the seaside, we are going to have very tall buildings. There is no rule of what is the level of the buildings. What should be the minimum level? MSRDC. Yes. Matter reclamation as well as. Yeah, I know that issue. But प्रॉब्लम ऐसा है कि सीआरजेड पूरी तरह से सीआरजेड पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, और वो डिसीजन लेने के लिए कुछ कारण भी हो सकता है, उन्होंने उसका लिया होगा. तो राइट नाउ मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वो इसलिए रिलैक्स किया होगा, शायद वहाँ पे कोई हो गया और शायद किसी के फेवर में भी हो सकता है.
So that we have to find out, and that according to that we have to do the action. Huh? Yes. नहीं, लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी भी बहुत अच्छी थी भाई। कांग्रेस बोलते हैं ये कांग्रेस के बाद का नहीं, पहले तो हम CRZ1, CRZ2 करते थे, 2 में तो डेवलपमेंट नहीं अलाउड था, लेकिन अभी न्यू पॉलिसी हुई है तो उसके पीछे Correct. देखना पड़ेगा कि किसके लिए पॉलिसी हो रही है। जैसा मुझे मालूम है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको फनल का इशू इसीलिए बताया था कि सिर्फ 18 लाख पीपल सफर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक पॉलिसी नहीं है, उनको हम इंसेंटिव नहीं दे रहे, उनको हम TDR नहीं दे रहे, FSI नहीं दे रहे। हमारा एविएशन डिपार्टमेंट उनके लिए ये ध्यान नहीं दे रहा है कि वो टेक ऑफ और लैंडिंग आगे कर चुका है लेकिन पीछे का कैलकुलेट कर रहा है। इसलिए 18 लाख पीपल को सिर्फ वो बिल्डिंग में 70 साल से पुरानी बिल्डिंग है, यू कैन अंडरस्टैंड, और सेकंड फ्लोर तक है, सब सीनियर सिटीजन वहां पे रह रहे हैं। तो आप सोचो कि वहां पे तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि हम पॉलिसी नहीं बना पा रहे। जबकि हम किसी और के लिए FSI की पॉलिसी बनाते हैं, किसी और के लिए TDR बनाते हैं, किसी और के लिए DC रूल चेंज हो जाते हैं, किसी और के लिए MSRDC के रूल चेंज हो जाते हैं। आपके यहाँ पे ध्यान रहिए ना, होता है तो आप लोग को सब पता है। तो ठीक है, अभी सरकार तो बदली है। Varshaji, we are a city of 21 million, it's a population of Australia. It's a city of 21 million, it's a population of Australia. You're 1/6 of it, right? So you should really fight for our city, please. A lot of environmental, at the national level, all the environmental rules have been completely diluted in the last 10 years, especially during COVID. Forests, other things besides CRZ have all gone. So I request you to please speak about it. I like that you spoke about the pollution thing. Looking at H West itself, there are about 800 odd redevelopments, so there's a lot of traffic and air pollution. And I'd like it very much if the politics of hate was taken off, and if the real difference of man, woman, child kind of also disappear along with the imaginary differences of religion, and you kind of give every human being the same level of respect and right. That would be really good, because in infrastructure terms, all the so-called development that's done is very skewed. I'm an architect, I know it, in favor of the tax-paying man who drives a car. So it's very car-based development, everything's like roads and all that stuff. And if you're young, you don't have access to parks, they're shut during the afternoons. I don't know why. And if you're old, you cannot go to these facilities, and the roads are non-accessible friendly. So there are codes for all this. I hope that logic prevails in the parliament, and we do not have any municipal cooperators, by the way. So we have to address this too. So I hope you resolve that issue also. The new BNS Act and the new criminal law which has come into place, which prescribes that criminal trials should be over in 3 years and judgment should be pronounced after reservation in 45 days. But the thing is that we don't have the court infrastructure, we need better salaries for public prosecutors, we need to invoke technology in courts. So this is what is not happening on ground, and that is why as an MP, we need your support for enhancing that, to enhance justice.